नाडा सेंटर म्यूजिक थेरेपी की 7वीं विश्व कॉन्फ्रेंस राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। इस मौके पर डॉक्टर सी.के. पांडव मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर टी.वी. साईं राम की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में म्यूजिक थेरेपी में सराहनीय कार्य के लिए देश भर से आए 10 लोगों को सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मानित होने वाले लोगों में कैप्टन राजीव वत्स, डॉक्टर रचना, प्रोफेसर सुशील चंद्रा, डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय, टी विनोद कुमार, रेखा मल्होत्रा के नाम प्रमुख हैं। संगीत चिकित्सक कैप्टन राजीव वत्स ने बताया, म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। वे बताते हैं, मानसिक रोग, ब्लड प्रेशर, क्रोध व यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी में भी यह पद्धति प्रभावी है। Gets formulated because I am sharing a negative part of that is already studied. The US children who were playing more video games which were violent in nature, they became the neuronal circuits for parts formulated. So once it is formulated for the next negative part, we can easily do for that. I think this was again video for so now let us conclude for it. So in conclusion, I think leave that next. Let us come to the last one. These are few references which I thought let me share. And the latest work, even these work are being done in 2012, 13, 15. So in case if any one of you feel ready for that, I'll be more than happy for that. To conclude in the last, I have got some good instrument means what I'm trying to say, related to music means audio normally, but my major work was related to video. What I'm using means like till now I have not done good piece of work related to audio. But it is clearly told like our all 5 senses. Very scholarly and informative presentation because you enlightened us, because our left brain doesn't work much alone. So we could not get all this information. Now we will start activating the left brain also. And before I conclude, you made a wonderful point. That point actually, not many music therapists have made. In spite of the fact that there are many singers, they have not made that point. They just, take it for granted. Because in life, there are many things we take it for granted. We take it for granted water, which is absolutely essential, and what's happening in Yamuna and Ganga we are not aware of because we take it for granted. Life-giving source is water, and we waste water and we pollute water, we do all sorts of things. Like that, in many cases, like in music for instance, what is actually music? I happen to be an English literature student and I happen to love Wordsworth, William Wordsworth. Trauma in life, only they can realize what is meditation and they can only realize what is meant by this. Otherwise, it's all mere words. If I say something like emotional regulation, it doesn't mean anything. Unless a person undergoes emotional trauma, like a person who is very, very hungry, he can only know the value of food. The people who are not hungry, you are going to take them to a 5-star restaurant and they don't have appetite, they have constipation, they cannot work on it properly. Even if you give best of French wine, you give them for appetizer, that will not work. So similarly, music therapy I find doesn't work in people who have just got an idea and they have not experienced in life and they don't know what is life or how the life's ups and downs are there, which has to be accepted because it should not be allowed because you are up so you start floating. Thank you very much. Dependent upon different kinds of substances, different kinds of drugs, they will also help music. And Persian Al-Farabi, whom we all know as Al-Farabius, were also described that the music is having a healing power.
And who doesn't know about the Greek tradition or the modern allopathic traditions of music therapy or the allopathy? Hippocrates, who is known as the father of modern medicine, also believed in the music, therapeutic powers of music, and he always worshipped Lord Apollo, whom he considered as the god of music and god of medicine both. And in Bible also we'll find its description. Music exists since the time unknown, but the music therapist is music therapy is also as old as the music itself is. Because when the music was created, it was created just by the natural instinct. But once the human being tend to know that it gives them a feeling of well-being, it increases their enthusiasm. They went. म्यूजिक थेरेपी जो होता है वो संगीत के बेसिस पे हीलिंग इफेक्ट्स के बारे में, जैसे कैसा उसको क्योर करना, प्रॉब्लम है आदमी का आजकल इतना मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। आप देख रहे हैं कहीं भी बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे आदमी हमारे जैसा लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है। सो मेंटल प्रॉब्लम किस वजह से आता है? टेंशन के वजह से आता है। और सोसाइटी में इसी वजह से डिसहार्मनी होती है, फैमिली के अंदर गड़बड़ होता है, अलग अलग हो जाते हैं, मियाँ बीवी बहुत अलग हो रहे हैं आजकल, बच्चे लोग अलग हो रहे हैं, पेरेंट्स लोग अलग हो रहे हैं, दादा नानी दादा को छोड़ देते हैं। इस टाइप का आजकल समस्या बहुत है। और हर एक आदमी छोटे बच्चे से लेकर टेंशन में रहता है। 2-3 साल के बाद होने के बाद वो बच्चों को इतना टेंशन बढ़ जाता है, वो नर्सरी स्कूल में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग बोलते हैं टेंशन हो गया अंकल बोल रहे हैं। सो इस टाइप का हम लोग देख रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े नेता तक लोग वह टेंशन में जी रहे हैं। इसी वजह से उनका जो बिहेवियर भी खराब हो रहा है, उनके वजह से सोसाइटी में बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, और जो जिसको आना चाहिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो काम करता है उसको काम के लिए जो तनख्वाह मिलना चाहिए वो भी कई बार नहीं मिल रहा है, वो भी कम मिल रहा है। कई बार बहुत मेहनत करता है आदमी फिर भी कम आ रहा है, तो वो भी टेंशन में हो जाता है। जो काम ही नहीं करता है उसके पास करोड़ों रुपया आ जाता है, वो भी टेंशन में रहता है क्योंकि उसको कैसा मैं खर्च करूँ। सो इस टाइप का प्रॉब्लम है। सो इस टाइप का प्रॉब्लम में एक ही सोल्यूशन है कि माइंड को कंट्रोल में रखना। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है योगा के ऊपर, इंटरनेशनल डे बना दिया। ये पहली बार ये हुआ इंडिया में। तो क्योंकि योगा जो है वो 5,000-6,000 साल से ऊपर का ट्रेडिशन है, उसमें यही हैंडल कर रहा है माइंड को कैसा रखना। आदमी का प्रॉब्लम सारा माइंड के वजह से आ रहा है, माइंड के वजह से बॉडी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये नहीं कि फिर बॉडी के वजह से माइंड में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको माइंड में प्रॉब्लम आ गया, बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, बॉडी में आ गया फिर माइंड में भी आ गया। तो इस टाइप का इंटरकनेक्टिविटी है, साइकोसोमैटिक डिसीजेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता, अल्जाइमर्स हो जाता, कैंसर हो जाता, और पता क्या क्या बीमारी है जिसके लिए कोई दवा नहीं है। फुल प्रूफ मेडिसिन कोई भी नहीं है इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी नहीं है। ये नहीं बोल सकते ये दवा खाओ तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये दवा खाओ तुम्हारा मेंटल टेंशन कम हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। कुछ है ब्रूफेन वगैरह कोई है वेस्टर्न मेडिसिन, वो खाने से साइड इफेक्ट हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, दिमाग भी खराब हो जाता है, ये भी हो जाता है। सो इसलिए वो टेंशन का रिलीव जो हो रहा है उसके वजह से भी टेंशन आ रहा है। सो अभी जो दवा है, केमिकल हो नेचुरल हो, इतना बढ़िया दवा कोई भी नहीं है मेंटल टेंशन के लिए, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन एक दवा है, ये 5,000 साल पहले ही इंडिया में डिस्कवर हुआ, नाद योग करके। नाद योग में क्या है, नाद मतलब साउंड है, वो साउंड को आप यूज़ कर रही हो, वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड में जो टेंशन है उसको ठीक करने के लिए। और साउंड के साथ हार्मोनिक्स होता है। अभी ओम चैंटिंग लोग बाग करते हैं, ओम करते हैं ओम, उसमें क्या हो रहा है, वो ओम करते वक्त हार्मोनिक्स भी इंक्लूड होता है। तो हार्मोनिक्स आने से उसमें क्या होता है, उसका टेंशन का मात्रा जो है वो कम होता जाता है। तो इसलिए बहुत योगीज वगैरह इंडिया में हमने देखा है,
वो लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, बाकी लोग परेशान में रहते हैं, योगी से रिलैक्स में रहते हैं। तो अभी हमारा एम है बाकी लोगों को योगी बना दो, योगी को परेशान करो जी। तो इसका मतलब है योगी का मतलब धंधा कम करो, और बाकी जो लोग हैं जो रियली मतलब कॉमन आम आदमी है, पब्लिक है, उनके लिए मतलब ये जो टेंशन कम होना चाहिए। ये किस तरफ से कम होगा? बहुत सिंपल म्यूजिक है, सिंपल है म्यूजिक में हर एक कुछ है। म्यूजिक में बहुत सारा वैरायटी है जी। साउथ इंडियन म्यूजिक है, नॉर्थ इंडियन है, कर्नाटक है, हिंदुस्तानी है, फोक म्यूजिक है, पंजाबी, हरियाणवी, पता नहीं कितना म्यूजिक है, बंगाली म्यूजिक है जी। सारा एक ही हम लोग मानते हैं। सारे जैसा वो मतलब हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई धर्म है, सब एक ही मानते हैं, क्योंकि वो अलग अलग दिखता है लेकिन रास्ता तो सबका एक ही है, वो मतलब भगवान के ऊपर जा रहा है। ऐसा ही ये जो म्यूजिक है, हरियाणवी हो, फोक म्यूजिक हो, बॉलीवुड का म्यूजिक हो, कॉलीवुड का म्यूजिक हो, बंगाली म्यूजिक हो, सारा म्यूजिक जो है उसका एम जो होता है आपका माइंड को रिलैक्स करे। जी, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा इस म्यूजिक थेरेपी को लेके, क्या हुआ है अब तक? हाँ, मैं कैप्टन राजीव, आई एम फॉर्मर पायलट विद सिविल एविएशन। पहले मैं असम में पायलट था, फिर मैं इलाहाबाद जाया चीफ इंस्ट्रक्टर पायलट ट्रेनिंग, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, और मुझे कैंसर हो गया था, ओरल कैंसर 3rd स्टेज का, और उसके कारण मैं बिल्कुल ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के कारण बिल्कुल बोल नहीं पाता था। न्यूट्रिशन यूज़ किए, न्यूट्रिशन और म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी से मैं आवाज़ लेके आया, मेरी ज़ुबान आधी काट दी गई है मतलब ऑपरेशन के अंदर, और मैं बिल्कुल ही मतलब आई बिकेम डम, और उसके बाद मैं बोल नहीं पाता था। तो सब मेरे गाइड डॉक्टर साईं राम ने इन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको कैसे करना है, तो मैं उस हिसाब से इनकी गाइडेंस में मैंने म्यूज़िक थेरेपी लिया। नाउ आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद यू, आपके सामने बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत है वो है ही, ये भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। बस मैं ये कहता हूँ कि इंसान को चाहे कैसी भी बीमारी क्यों नहीं आ जाए, उसके अंदर उसको फाइट करना चाहिए विद द विल पावर एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक विल एनलाइटन योर सोल। अगर सोल एनलाइटन हो गया तो आपको जीने की इच्छा हो जाएगी, जीने की इच्छा हो जाएगी तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हरा सके। सर, आप हमारे चैनल से कोई मैसेज देना चाहते हो आम जनता को इस म्यूजिक थेरेपी के लिए? हाँ, आम जनता को मैं ये बोलने वाला हूँ, ये किंडरगार्टन स्कूल से लेके बड़े बड़े कॉलेज है, PhD तक जो क्लासेस होते हैं या MPhil वगैरह होते हैं, वहाँ तक जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, IIT, IIM, हर एक में म्यूज़िक का लेसन होना चाहिए। म्यूज़िक के लिए क्लासेस होना चाहिए। जैसा पुराने ज़माने में होता था, हमारे स्कूल में पहले स्टार्ट करने से पहले प्रेयर सॉन्ग होता था, सब लोग को गाना गाना पड़ता है, उसके बाद ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन आजकल मैंने सुना है कई जगह पे वो म्यूज़िक टीचर को बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल में बड़ा मतलब लोग इसी वजह से तनाव ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये सोचेंगे म्यूज़िक क्लासेस को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए सारे स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में म्यूज़िक का सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, और पब्लिक को जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए म्यूज़िकल ट्रेनिंग देना चाहिए इसी बेसिस पे, क्योंकि उस हमारे सिस्टम जो है इतना बढ़िया सिस्टम है इंडिया में। आप हर 10 किलोमीटर जाओगे, एक डिफरेंट म्यूज़िकल जॉनर पैदा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक होता है। हरियाणा में भी आप देख लो 10-20 टाइप का म्यूज़िक है, पंजाब में देखो 10-20 टाइप का म्यूज़िक है। इतना स्टेट में इतना रिच है, हम लोग मतलब बहुत रिच है। इंडियंस आर नॉट पुअर, इंडियंस आर वेरी रिच इन कल्चर एंड वेरी रिच इन म्यूजिक। लेकिन इस म्यूजिक को हम लोग एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पास वो फैला नहीं रहे हैं, बच्चे लोग म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं। ये बड़ा ये समस्या हो रहा है, इसीलिए ये म्यूजिक को बहुत बढ़ावा देना चाहिए।